Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Dr. Namra and today I will teach you about monitoring and supervising curriculum revision and evaluation process. Let's start with the content. First of all, we discuss about introduction, definition, type of curriculum used in schools, elements and components of curriculum, curriculum monitoring, importance of curriculum monitoring, curriculum supervision, curriculum revision by HEC, what, why and how to evaluate curriculum evaluation and steps. Curriculum is a dynamic as a changes that occur in a society. करिकुलम क्या होता है? जो डायनेमिक चेंज लेके आता है सोसाइटी में और ओवरऑल चेंज लेकर आता है उसको हम कहते हैं करिकुलम यानी लर्निंग मटीरियल. In narrow sense, curriculum is viewed merely as a listing of subjects to be taught in school. In a broader sense, it refers to total learning experiences of individuals not only in school but in a society as well. नैरो सेंस में अगर हम बात करें तो क्या जो कोई करिकुलम क्या है लर्निंग मटीरियल है जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, और अगर हम ब्रॉडर सेंस से बात करें तो ये आपकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे बेस करता है जो आपकी इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए जो है आपकी नोरिशमेंट के लिए सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए आपको पढ़ाया जाता है या सिखाया जाता है स्कूल में. डेफिनेशन की हम बात करें तो द वर्ड करिकुलम कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड करी मीनिंग टू रन द कोर्स. दिस इज सेम लैटिन वर्ड दैट करियर कम्स फ्रॉम. Curriculum is understood as a course of study allowing the student to follow it until he is finished with the race. The curriculum is include all the learning experiences in or outside the school that are included in a program which has been devised to help him develop mentally, emotionally, socially and spiritually and morally. तो अगर हम बात करें करिकुलम की तो वो कह रहे हैं कि लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसे मानी है कि कोर्स ऑफ स्टडी है जिसमें आपको इसको रोड मैप भी कह सकते हैं टू रीच टू योर डेस्टिनी. और इसमें आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं जो विद इन स्कूल इनसाइड और आउटसाइड आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट है, होलिस्टिक डेवलपमेंट है, आपकी इमोशनली है, फिजिकल है, सोशल है, स्पिरिचुअल एंड मॉरल है. These are the other brief definitions of curriculum. A brief answer is hard to give as curriculum as can be both written and unwritten. Essentially, curriculum is what the school is attempting to teach, which might include social behaviors as well as content and thinking skills. A course of study that will enable the learner to acquire specific knowledge and skills. A curriculum consists of the roadmap or guideline of any given discipline. A detailed plan for instruction set by the policy maker. अब वो कहने की करिकुलम क्या होता है कि ओवरऑल आपकी रिटन और रन फॉर्म दोनों में होता है जिसमें वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दी आ जाती है, इसमें स्पेसिफिक नॉलेज होता है जिसमें स्किल्स आपको सिखाई जाती है, इंडिविजुअल को इस काबिल बनाया जाता है ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने के काबिल हो जाए, आपकी थिंकिंग स्किल जो है वो प्रमोट हो जाती है. ये रोड मैप और गाइडलाइन की तरह होता है और पॉलिसी मेकर और इसको एक्सपर्ट्स जो हैं वो बनाते हैं. टाइप्स ऑफ करिकुलम, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ करिकुलम ऑपरेटिंग इन अ स्कूल. रिकमेंडेड करिकुलम, it is proposed by scholars and professionals organizations. Written curriculum appears in a school, district, division or country level documents. Taught curriculum, what teachers implement or deliver in the classroom and schools. तो बेसिकली स्कूल में जो है वो टॉट करिकुलम को हम ज़्यादा हम फेम होता है क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पर टीचर अप्लाई करते हैं और बुकिश नॉलेज होता है, टेक्स्ट बुक या ऑडियो विजुअल एड्स या किसी तरह पे आपको पढ़ाया जाता है स्कूल में. Supported curriculum refers text book, computer, audiovisual material which support and help in the implementation of the curriculum. Access curriculum, curriculum which is tested and evaluated. Learn curriculum, what the students actually learn and what is measured. Hidden curriculum, the unintended curriculum, जो कि साइड बाई साइड चलता रहता है आपकी स्टडी के आपकी नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ साइड बाई साइड आप नॉन फॉर्मल बेस से सीखते हैं. द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एलिमेंट्स आर aims, goals, objectives, subject matter, learning experiences and evaluation process. Goals provide overall direction or guidance. Images for curriculum development. A statement of goals should reflect a well-developed positions that is rooted in a particular conception of philosophy, psychology and society. अब गोल्स क्या होते हैं कि आपने जिस चीज़ को अचीव करना है उसके लिए आप प्लानिंग करते हो, अपनी टारगेट अचीव करते हो तो आप इसके लिए गोल सेटिंग करते हैं. ठीक है जी. देयर आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द करिकुलम्स. एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं. गोल्स सबसे पहले क्या होता है कि आप इसमें ओवरऑल डायरेक्शन देखते हैं, गाइडलाइंस देखते हैं कि आपने करिकुलम में आपको डेवलप करने के लिए आपने अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए आपको क्या प्लानिंग करते हैं प्रॉपर. ठीक है, वो आपके गोल्स कहलाते हैं. वो उसमें जनरल गोल्स भी आ सकते हैं और स्पेसिफिक लेवल के गोल्स भी आ सकते हैं. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस एम्स, गोल, ऑब्जेक्टिव्स की होती है जब भी आप करिकुलम की फॉर्मेशन करते हैं या हम उसके एलिमेंट्स की बात करते हैं. अ स्टेटमेंट ऑफ गोल्स शुड रिफ्लेक्ट अ वेल डेवलप्ड पोजीशन दैट इज़ रूटेड इन अ पर्टिकुलर कंसेप्शन ऑफ फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड सोसाइटी. फॉर एग्जांपल, टू डेवलप स्किल्स इन इंटरपर्सनल
and group relationships in students by helping them recognizing the importance and need for adopting moral standards of behaviors. तो अब सबसे पहले इसमें वो कह रहे हैं कि आप मॉरल स्टैंडर्ड्स देखते हैं, एथिकल इश्यूज देखते हैं, सोसाइटी की नॉर्म्स देखते हैं, रिलीजियस पर्सपेक्टिव को देखते हैं, उसके बाद अपने आप गोल्स को सेट करते हैं। सेकंड स्टेप पे आ जाता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। अब आप देखते हैं कि आपने किन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। रॉबर्ट मेजर 1962 हैज़ बीन वन ऑफ द प्रिंसिपल प्रोपोनेंट ऑफ राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। ही सजेस्ट दैट बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स शुड contain 3 components: expected student behavior, the appropriate conditions under which the behavior can be carried out, the degree of performance required. अब सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि आप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ में देखते हैं कि आपने अपने बिहेवियर ऑब्जेक्टिव आपको किस तरह की होने चाहिए, जिसके लिए आप स्टूडेंट्स की बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, फिर आप उसकी अनवांटेड आपने बिहेवियर को रिमूव करना है, और आप उसकी कितनी डिग्री ऑफ परफॉर्मेंस को आप लेके कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं, आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। फिर आप कंटेंट की सिलेक्शन करते हैं करिकुलम के एलिमेंट्स में। कंटेंट सिलेक्शन में आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी इशू है और बहुत ज़्यादा केयरफुली आप इसको देखते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। द वर्ड कंटेंट इज़ यूज्ड इंटरचेंजेबली विद टर्म्स सच एज सब्जेक्ट मैटर, नॉलेज, कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़। इन सिलेक्टिंग कंटेंट करिकुलम वर्कर्स will emphasize various criteria. The criteria for choosing elements fall into following categories: साइकोलॉजिकल क्राइटेरिया है, सोशल पॉलिटिकल क्राइटेरिया है, आइडियोलॉजिकल क्राइटेरिया है, स्टूडेंट इंटरेक्ट क्राइटेरिया है, स्टूडेंट रेडीनेस क्राइटेरिया है और फिलोसॉफिकल क्राइटेरिया है। तो इन सब पर्सपेक्टिव को मद्देनजर रख के करिकुलम जो है वो बिल्टअप किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप पे है टीचिंग स्ट्रेटजीज और लर्निंग एक्सपीरियंसेस। टीचिंग एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं? इन इंस्ट्रक्शंस द टीचर डिज़ाइंस एन इमीडिएट सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। आप देखते हैं कि आपकी टीचिंग स्ट्रेटजी कितनी ज़्यादा जो है इफेक्टिव हैं, या आपको इस लर्निंग एक्सपीरियंस बेस पे आप देखते हैं कि मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, न्यू स्ट्रेटजी अप्लाई करने की ज़रूरत है। तो इट इज़ अ इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ करिकुलम। लास्ट पे हमारे पास आता है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन इज वन ऑफ द डायनामिक प्रोसेस विच नीड्स अ कंटिन्यूस रिसर्च एंड एवेल्यूएशन फॉर इट्स बेटरमेंट इन ऑर्डर टू कोप एंड ब्रिंग about desirable changes. Curriculum evaluation is not a student evaluation. It is a broader term being used to make judgment about the worth and effectiveness of it. With the help of evaluation phases, experts can modify the curriculum by bringing about desirable change. तो आप किसी की बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, सोसाइटी में डिज़ायरेबल चेंज लाना चाहते हो, उसके लिए एवेल्यूएशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। करिकुलम की एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है, सिर्फ स्टूडेंट लेवल तक नहीं है बल्कि ये पूरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, बल्कि पूरी सोसाइटी को ये अफेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद हम करिकुलम मॉनिटरिंग की बात करते हैं। करिकुलम मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी होती है? करिकुलम मॉनिटर करना क्यों ज़रूरी होता है? मॉनिटरिंग क्या प्रोसेस होता है जिसमें कंट्रोलिंग करते हो, ओवरव्यू करते हो, परफॉर्मेंस को देखते हो, फिर जज करते हो, फिर इवैल्यूएट करते हो, सुपरवाइज करते हो। मॉनिटरिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड यूजिंग इंफॉर्मेशन टू ट्रैक अ प्रोग्राम्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स रीचिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टू गाइड मैनेजमेंट डिसीजंस। A process of gathering information for evaluating the effectiveness of the curriculum and ensuring that the intended, implemented, and attained curricula are aligned. This process typically focuses on the such issues as relevance, consistency, practicality, effectiveness, scaling up and sustainability. अब सबसे पहले आप ये देखते हो कि मॉनिटरिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप रिसर्च मेथड्स के अकॉर्डिंग आप डाटा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो, उसको एनालाइज करते हो और फिर आप देखते हो कि प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप मज़ीद कहाँ पे गाइडलाइन की ज़रूरत है, आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, फिर आप उनको एवेलुएट करते हैं, मज़ीद अपनी इफेक्टिव बनाते हैं अपने करिकुलम को, उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स उसने कहा है, कुछ इश्यूज़ भी आ सकते हैं कि एक तो रेलिवेंट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट दूसरे से इंटरलिंक भी होना चाहिए, उनके अंदर तसलसल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ के साथ इंटरलिंक करें, इफेक्टिव होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम मॉनिटरिंग: determine if the curriculum is still relevant or effective, know if the curriculum is working or not, provide decision on what aspects have to retain, improve or modified, provide decisions that would even and or terminate the program। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस देखिए कि आपको लगता है कहाँ पर मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं, किन चीज़ों को जो अननेसेसरी आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। फिर करिकुलम सुपरविजन की अगर हम बात करें तो सुपरविजन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप प्लानिंग देखते हैं, आपने जो प्लानिंग एग्जीक्यूट की थी उसको आप सुपरवाइज़ करते हैं मॉनिटर करने के बाद उसके साथ साथ। अकॉर्डिंग टू एडम्स एंड डीके, सुपरविजन इज़ अ प्लान प्रोग्राम फॉर द इम्प्रूवमेंट। इट एग्जिस्ट इन देयर ओपिनियंस फॉर वन रीज़न ओनली, टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। The Review Council defined curriculum supervision as the role of persons whose basic job description includes planning, directing, supporting development, implementation, evaluation of the curriculum.
अब सुपरविजन की हम बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप देखते हैं जो आपने प्लान बनाया था करिकुलम को, उसको डायरेक्ट करना, उसको सपोर्ट करना, उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करना, इम्प्लीमेंटेशन, देन आप लास्ट पे एवेल्यूएशन करते हो, ठीक है। हम सुपरविजन एंड एवेल्यूएशन, उसके साथ साथ एवेल्यूएशन की बात हम करते हैं। करिकुलम एवेल्यूएशन के साथ हम सुपरविजन ज़रूरी है। करिकुलम रिवीजन मीन्स टू गिव इट अ न्यू पोजीशन और डायरेक्शन, alteration to its philosophy by way of its aims and objectives, reviewing the content included, revising its methods and rethinking its effectiveness। तो अब कह रहे हैं कि सुपरविजन और एवेल्यूशन का प्रोसेस ये बताता है क्या फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल वेज में आप देखते हैं कि आपके एम ऑब्जेक्टिव्स आपने जो बनाए थे कितनी स्मूथली आपने उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, आपने अपने अचीव किया अपने गोल्स को, या नहीं कंटेंट आपका अप्रोप्रिएट है या मेथोडोलॉजी आपकी ठीक है। फिर इसके हवाले से आप री थिंकिंग करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं, उसको मज़ीद उसके इफेक्टिवनेस से जहाँ पे बेहतरी लाने की ज़रूरत होती है आप उसको कुछ इकदाम करते हैं। 8 स्टेप्स टू करिकुलर चेंज, अगर हमसे चेंज क्यों हम करिकुलम में चेंज लाते हैं उसके 8 स्टेप उन्होंने हमें डिस्कस किए हैं। एनालाइज करंट टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग गोल्स, री एग्जामिन द लिंक बिटवीन गोल्स एंड कोर्स डिज़ाइन, reconsider the role of assessment in the course, develop teaching strategies and approach, explore curricular questions, formulate deliberate access possible reform models। तो इन वजूहात की बिना पे आप देखते हो कि चीज़ों को एनालाइज करने की, रीथिंक करने की, उसके असेसमेंट करने की, रिवाइज करने की और चेंज लाने की जो है उसमें ज़रूरत है। नीड फॉर रिवीजन इन करिकुलम, अब हम देखते हैं कि करिकुलम में रिवीजन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। To restructure the curriculum according to the needs, interests or abilities of the learner, to eliminate unnecessary units, teaching methods and content, to introduce latest and update methods for teaching and content, new knowledge and practices, to add or delete number of teaching hours of instruction, to correlate between the students' theory courses and learning practices, to select learning experiences based on the objectives rather than on the service needs of the society. The students themselves receive little or no experience in assuming responsibilities or in making choices. Everything is decided for them by the teacher or the administrator। तो बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि बच्चों की अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, एज, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम उसको देखते हैं कि क्या ये कैपेबल हैं, बच्चों के लिए सूटेबल भी है या नहीं है, और कोई अनवांटेड या अननेसेसरी यूनिट्स हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी अप्रोप्रिएट नहीं है या कंटेंट आपके लिए अननेसेसरी, तो उसको हम रिमूव करते हैं और कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट अपडेट मटेरियल को उसमें इंक्लूड किया जाए और लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, कंटेंट का पार्ट बनाया जाए, प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट होना चाहिए, न्यू नॉलेज पे बिल्ड करना चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकें और हमें डेवलप कंट्री की तरह जो है हम मूव करके प्रोग्रेस अचीव कर जाएँ। इसके अलावा वो क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या चीज़ डिलीट करनी है, कितने इंस्ट्रक्शन आपके क्रेडावर होने चाहिए, सब चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। उसकी कोरिलेशन चेक की जाती है, टीचर के एक्सपीरियंसेस के बेस पे, लर्निंग प्रैक्टिसेस की बेस पे ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाता है और फिर देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना उन्होंने खुद से लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट जो है कितना अपने एक्सपीरियंस बेस पे क्या सीख रहे हैं। एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड बाय द टीचर। तो टीचर के साथ निगोशिएट किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है इसको कंसिडर करते हैं और फिर रिवीजन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पेश आती है। करिकुलम रिवीजन जो है वो HAC के अंडर होता है कि हाई लेवल पे। नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी NCRC प्रोसेस, द करिकुलम रिवीजन वर्क रिलेट्स टू क्लास 12 एट द बैचलर लेवल्स एंड ऑनवर्ड्स रिगार्डिंग ऑल डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमाज। द HAC may at any time choose to advise the chancellor of an institution on its status and regulations. To facilitate these changes, committees comprising senior academics nominated by the universities are established at the national level। अब ये कहते हैं कि नेशनल लेवल पे, हाई लेवल पे HAC जो है वो मॉनिटर करती है, सब चार्टर्ड यूनिवर्सिटीज़ के अंडर होती हैं और वो वाइस चांसलर को देख सकते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, किसी वक्त आपकी चेक कर सकते हैं आपकी कितना आपका रेगुलेशन है, रेगुलर प्रोग्राम स्मूथली चल रहे हैं। 12 क्लास 2 ऑनवर्ड वो जो है ये सारा कंट्रोल होता है HAC का। इसमें डिफरेंट बोर्ड्स हैं, कमेटीज़ हैं, एकेडमिक नॉमिनेटेड यूनिवर्सिटीज़ के पर्सनस होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं नेशनल लेवल पे जो अपने ओपिनियंस देखते हैं और उससे उसको रिव्यू करते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन करिकुलम रिव्यू और रिवीजन प्रोसेस। द करिकुलम रिव्यू एंड द रिवीजन प्रोसेस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 phases। फेज़ 1 है करिकुलर अंडर कंसिडरेशन। स्टेप 1 पे है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCRC इन द सब्जेक्ट, असेसमेंट एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग करिकुलम, NCRC मीटिंग, ड्राफ्ट प्रिपरेशन। फेज़ 2 पे है सर्कुलेशन ऑफ ड्राफ्ट करिकुलम।
स्टेप 1 है अप्रेजल ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट, स्टेप 2 पे है NCRC मीटिंग, फाइनलाइजिंग ऑफ ड्राफ्ट एंड देन इम्प्लीमेंटेशन। अब सबसे पहले वो ये देखते हैं कि फेज़ 1 में कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट एक आइन बनाया जाता है जो NCRC कमेटी जो है वो उसको बनाती है अंडर द supervision of HEC. Subject accordingly, the head of institutes requested to nominate their representatives for appointments as member of National Curriculum Review Committee. Second step है assessment analysis of the existing curriculum. उस पर assessment की जाती है, उसको analyze किया जाता है. Collective proposals for review and revision for existing curricula in the relation to learning outcomes, scheme of studies, course content, weightage, reading material and teaching strategies. और फिर वो ये देखते हैं कि इन बेस पर उसको जज किया जाता है, देखा जाता है कि आपके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, स्कीम ऑफ स्टडी आपका ईयरली प्लान है, आपका 4 ईयर प्लान है, उसके अलावा स्कीम ऑफ स्टडी किस तरह से बनी हुई है, कोर्स कंटेंट क्या है, उसका कितना वो इफेक्टिव है स्टूडेंट के लिए, उसकी वेटेज, रीडिंग मटेरियल, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ कौन कौन से अप्रोप्रिएट हैं। फिर NCRC मीटिंग और ड्राफ्ट प्रिपरेशन का स्टेप आ जाता है। इसमें द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द NCRC इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट द HEC हेडक्वार्टर इस्लामाबाद और वन ऑफ द रीजनल सेंटर्स एट पेशावर, लाहौर एंड कराची। During this meeting, maximum local input could be made available in the exercise of revising the curriculum. Universities at different places may also be chosen to serve the purpose. The meeting, which normally runs for 3 consecutive days, comes with a draft of the revised curricular draft after detailed discussion and deliberation of the proposal prepared by the NCRC members. अब वो ये कहते हैं कि इसके अंदर सबसे पहले जो आप मीटिंग हेल्ड होती है, फिर वो देखते हैं कि आपने एक ड्राफ्ट तैयार करती हैं और डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के वो रीजनल कैंपस और नेशनल लेवल पे उसको अप्रोच किया जाता है और फिर उसको ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। सेकंड फेज में आ जाते हैं सर्कुलेशन ऑफ द ड्राफ्ट करिकुलम, उसकी सर्कुलेट करना है आपने विद इन कंट्री। स्टेप 1 पे है अप्रेजल ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट। द फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड इज सर्कुलेटेड अमंगस्ट द लोकल एज वेल एज एक्सपेरेटेड पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स। सेकेंड स्टेप है NCRC मीटिंग और फाइनलाइज द draft. The second meeting of the NCRC is held to finalize the draft of the revised curriculum in the light of comments and suggestions. The meeting would again the 3 days to finalize the curriculum. फिर 3 days के अंदर उसको finalize किया जाता है. Then implementation है. The curriculum design is printed and sent to the university institution for its appointment with implementation of the approval of competent authority. And then फिर उसको approval मिलने के बाद उसको implement करने के लिए आगे forward किया जाता है. फिर करिकुलम एवेल्यूशन की प्रोसेस की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू वर्डन एंड सेंडर 1987 ऑल करिकुला टू बी इफेक्टिव मस्ट हैव द एलिमेंट ऑफ द एवेल्यूशन. करिकुलम एवेल्यूशन हेयर मे रेफर टू द फॉर्मल डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी, effectiveness or value of the program, process and product of the curriculum. Curriculum evaluation is defined as the process of delineating, obtaining and providing information useful for making decisions and judgments about a program of learning. Translation of these activities that translate a curriculum design into intended instructional activity. अब वो ये कह रहे हैं कि एवेल्यूशन प्रोसेस क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम डिफरेंट लेवल पे हम देखते हैं प्रोग्राम के हमारा कितना इफेक्टिव है, उसको प्रोसेस करने के लिए मज़ीद इफेक्टिव बनाने के लिए उसका एवेल्यूशन प्रोसेस जो है बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, जजमेंट करते हैं, एवेल्यूशन करते हैं, उसको करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज उसमें ऐड करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को ऐड करते हैं और फिर उसकी हम फाइनली एवेल्यूशन करते हैं. व्हाट, व्हाई एंड हाउ टू एवेलुएट अ करिकुलम. व्हाट, हमें क्यों ज़रूरत आती है करिकुलम एवेल्यूशन की. बिकॉज करिकुलम एवेल्यूशन इज़ अ प्रोसेस डन इन ऑर्डर टू गैदर डाटा दैट enables one to decide whether to accept, change, eliminate the whole curriculum of a textbook. तो हमें इसलिए ज़रूरत पेश आती है कि हमने देखना जो करिकुलम है क्या उसको एक्सेप्टेबल है, अब उसमें चेंज की ज़रूरत है तो कहाँ, और जो अननेसेसरी मटेरियल्स को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है और फिर कंप्लीट एक टेक्स्ट बुक तैयार की जाती है. वाई की अगर हम बात करें तो एनी एस्पेक्ट ऑफ एन एक्टिविटी और अंडरटेकिंग शुड बी एवेलुएटेड फॉर पर्पसेज ऑफ बेटर परफॉर्मेंस इन द फ्यूचर. तो बेटर परफॉर्मेंस, फ्यूचर परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए हम जो है इसको एवेलुएट करते हैं. अगर हम एक ही करिकुलम इंप्लीमेंट करेंगे 10-10, 20-20 साल तो हम तरक्की नहीं कर सकते. हाउ की अगर बात करें तो उसके कुछ स्टेप्स हैं. स्टेप्स इन कंडक्टिंग करिकुलम एवेलुएशन. हियर आर द स्टेप्स. सबसे पहली बात आती है आइडेंटिफाइंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड क्राइटेरिया. जो बेंचमार्क होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, क्राइटेरियाज होते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपने करिकुलम में मॉडिफिकेशन करते हैं. फिर है आइडेंटिफाई टेक्निक्स. हम देखते हैं कौन से टेक्निक्स ज़्यादा सूटेबल है. आईटी का यूज़र हमने बनाना है, बच्चों को आईटी से फ्रेंडली बनाना है, तो हमने कौन सी टेक्निक्स को करिकुलम का पार्ट होना चाहिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी का पार्ट होना चाहिए. आइडेंटिफाई प्राइमरी ऑडियंस. फिर हम बेसिक ग्रास रूट लेवल पे देखते हैं कि हम डिडक्टिव रीजनिंग यूज सूटेबल है या इंडक्टिव रीजनिंग हम बच्चों को पढ़ाएंगे. आइडेंटिफाई क्रिटिकल इशूज़ को जो बर्निंग इशूज़ हैं.
जो सोसाइटी में, वो उसका पार्ट होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग डाटा सोर्सेज, फिर हमने कौन कौन से सोर्स से डाटा कलेक्ट किया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयरिंग मोड्स ऑफ डिस्प्ले और डिफरेंट, आपने कौन सी चीज़ें आपने हाईलाइट करनी है, ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। प्रिपेयरिंग वैल्यूएशन रिपोर्ट, आइडेंटिफाई टेक्निक्स फॉर कलेक्टिंग डाटा, फिर आप देखते हो कि वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए आपने डाटा कलेक्ट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स आपने सूटेबल हैं, आपने यूज़ की हैं। तो आप देखते हैं कि कौन सी टेक्निक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए आप डाटा कलेक्शन करते हो, रोड रिपोर्ट प्रिपेयर करते हो, उसके बाद फिर आप एवेलुएशन करते हो। तो पूरा एक थॉरली एक कंप्लीट स्टेप है एवेलुएशन का। उसके बाद स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑन द सजेस्टेड प्लान ऑफ एक्शन फॉर द प्रोसेस ऑफ करिकुलम एवेलुएशन। एवेलुएशन के प्रोसेस में हम देखते हैं कि प्लान ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं ऑन द पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम, कलेक्ट और गैदर द इंफॉर्मेशन, organize the information. This step will require coding, organizing, storing and retrieving data for interpretation, analyze interpretation, report the information, recycle the information for continuous feedback, modification and adjustment of to be made. अब सबसे पहले वही देखते हैं कि करिकुलम में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन से हैं, इसके एलिमेंट्स कौन से हैं, उसके लिए डाटा कलेक्ट करती है, ऑर्गेनाइज करते हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको डीकोड किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रिट्रीव किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर रिसाइकिल करने के बाद, कॉन्टीन्यूस फीडबैक के बाद, मॉडिफिकेशन के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद उसमें एवेल्यूशन करके उसको चेंज किया जाता है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जाती है। होप सो यू कैन अंडरस्टैंड टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।